Good morning, children. I hope you all are fit and fine. Okay, children. So, let us start for our today's class. We were doing lesson number 2 from English literature book. The name of the lesson was The Story of a Great Story. I had explained to you the half of the lesson in my previous class, and today in this class I will be continuing the explanation part of the lesson. Okay? But before going to the second half of the lesson, let us take a quick recap of the half of the lesson which we have done. As you all know by now that this is the story of a man who had spent 4 years and 4 months on an island, that too all alone. वो अकेले रह रहा था ना आइलैंड में, उसने कितने समय गुजारे अकेले उस आइलैंड में? 4 years and 4 months. And what was the name of this person? इस आदमी का क्या नाम था? Yes, his name was Alexander Selkirk. What was his name? His name was Alexander Selkirk. Okay, and he was a rough man and a bad-tempered person also. Because of his this nature, he used to make a problem to all his neighbors. Wherever he went, due to his this nature of roughness and bad temper and stubborn nature, what happened? He could never adjust with other people. है ना, पहले वो नेबर्स के साथ रहता था तो उनके साथ उसकी बनती नहीं थी बिकॉज ऑफ हिज रफ नेचर, है ना, वायलेंट नेचर के कारण, उग्र नेचर के कारण क्या होता था, वो किसी के साथ भी अपना टर्म्स नहीं बनाता था। तो इस कारण फिर क्या हुआ, जब उसने उसका घर छोड़ के वो he ran away from his house, what happened, all the neighbors were so happy. Why so? Because he was such a person who could not be adjusted with. That's why. But then too, when they came to know that he had ran away from his house, what did they say? They said that according to his nature, everything bad should happen to her. Everything bad should happen to him. But then too, they were saying कि सब ठीक हो उसके साथ, है ना? Now, in spite of his roughness and his bad-tempered nature, he was a strong man also. Because of his strongness, what happened? He became a good sailor. And after he became a good sailor, while he was going with other persons on a sail, what happened? He was not adjusting with the captain and other sailors also. When they were going through the Great Pacific Ocean, what happened? That time also the same thing was happening. He was not able to adjust with the captain and other sailors. There also he had some of the other problems, and he was making others also. He was making problems for other people also. So what happened at last? What he told the captain, that it is better to live in a deserted place. To drop me to some deserted place, I'll be much happy over there. In spite of sailing with you people. He said like that. No? So what did the captain say? The captain and other sailors, they were happy with his wordings. What is that? Okay, we will do so. As soon as a near island comes, we will put you to the shore, and after that they will go away. So because they were very happy that he is telling from his own mouth that he want to go away, he doesn't want to continue with them the journey, he doesn't want to continue, but he want to go to some deserted place. He can deserted island, he will be happy over there. So they were in search of they were in search of such an island. And the very next day, what happened? They saw a land with greenery, like forested area. They saw a place, and what happened? They put him on shore, and they went off with their boat, and he was left alone in that island. Okay. Now let us continue the remaining. Whatever he asked them, set me on the shore and leave me there, give me a few common tools and serve food, and I will be happy and satisfied, said the sailor. What did he requested the captain? He said that you drop me to the shore of that forested area. After that, provide me with some common tools. I told you in my last class what are common tools like hammer, screwdrivers, and जो भी उसको
छोटे मोटे काम के लिए जो कॉमन टूल्स डेली में यूज होते हैं, ऐसे टूल्स उसको चाहिए थे। और व्हाट डिड ही डिमांड द अदर थिंग, कि उसको कुछ खाना भी चाहिए, बिकॉज ही इज लिविंग इन अ आइलैंड वेयर देयर इज नोबडी, अकेले रह रहा है उस प्लेस में, सो ही नीड्स सम फूड at least till the time he manages something else. He wanted food for few days, so he requested the captain to give him some common tools and some food so that he can carry on 2-3 days with that. Then what did the captain reply? It shall be done, asked the captain. Captain said, okay, no problem. We agree with you, we will provide you the common tools, we will provide you the food which you have asked us. So they filled a small boat with the things that he would need the most: an axe, a hoe, a kettle, and some other things. They also put in some bread and meat and other food items enough for several weeks. कुछ हफ्तों के लिए कि वो सरवाइव करे वहाँ पे उसके लिए what did the captain gave him? They filled a small boat, एक छोटे से नाव में, एक छोटे से बोट में उन लोगों ने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या चीजों से उसको भर दिया, an axe, a hoe, a kettle and some other things, and also some bread and meat, कुछ ब्रेड और कुछ मीट जो है वो भी उसको दिए, और साथ में कुछ अदर फूड आइटम्स, जिससे कि वो उसका गुजारा कर सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए, जब तक कि वो कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं करता है. Then four of the sailors rowed him to the shore and left him there. The ship sailed away and was soon lost to sight. फिर क्या हुआ, वो चार सेलर्स ने क्या किया, बोट को रो करके शोर में पहुंचाया और शोर पे अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक को उतार दिया, एंड दे वेंट बैक. अपनी बोट लेके वो वापस चले गए और कुछ ही देर में देखते देखते वो उसकी आंखों से ओझल हो गया. Then Selfridge set to work to make the best of things. जैसे ही वो बोट जो है उसकी आंखों से ओझल हो गया, फिर क्या किया उसने, अलेक्जेंडर सेल्फ्रिज ने क्या किया, अब उसने सोचा कि वो वापस काम में लग गया और उसको सारे जो भी अरेंजमेंट्स उसको करने थे, जो भी उसको नीडफुल चीजों को अरेंज करना था, वो सारे कामों के लिए वो जुट गया. He built himself a little hut for shelter at night and in stormy weather. He planted a small garden. अब उसने सबसे पहले क्या, किस चीज का जुगाड़ किया, उसने सबसे पहले एक छोटा सा लिटिल हट बनाया. किस लिए, उसके रात के शेल्टर के लिए, रात को उसको ठहरने के लिए, और अगर आंधी तूफान आए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक छोटा सा सबसे पहले एक लिटिल हट को बनाया. और देखते देखते उसने क्या किया, एक स्मॉल गार्डन को भी उसने प्लांट कर दिया. There were goats on the island and plenty of fish could be caught from the shore. So there was always plenty of food. फिर क्या किया उसने, उसने उस आइलैंड में कुछ गोट्स थे तो उसने उस गोट को पाले. और फिर क्या हुआ, अब सी शोर है तो जाहिर है कि बहुत सारे उसको क्या मिल रहे थे, फिशेस मिल रहे थे, तो फिश को कुक करके वो खा पा रहा था. तो क्या हुआ, सो इस कारण क्या है, उसको बहुत सारे उसके पास क्या थे, फूड इकट्ठे हो गए थे. Soon he began to see how foolish he had been. He thought how terrible it would be to live there without one friend, without one person with whom he could speak. अब देखो, उसने अपने अरेंजमेंट्स तो कर दिए, भले वहाँ पे कोई रहे नहीं रहे, उसने अपना एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया, उसने एक गार्डन प्लांट कर दिया, उसको फिश भी मिल गए सी शोर से खाने के लिए, और गोट्स भी मिल गए, सब कुछ हो गया. बट देन टू उसको तब लगा, उसकी मूर्खता पर उसको तब विचार आया कि मैं भी कैसा फुलिश पर्सन हूँ, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी वो अकेला है ना. देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन विथ whom he can communicate. कोई दोस्त नहीं, कोई बातचीत करने के लिए पर्सन नहीं, तो सब कुछ होने के बाद क्या मतलब है ना. वी शुड हैव समबडी टू टॉक टू, वी शुड हैव समबडी टू that we can call, हाँ ये मेरा दोस्त है. some nearby people should be there with us. How can we live in a deserted place all alone? तब उसको समझ में आया कि उसने क्या गलती करी है. Sometimes Selfridge saw ships sailing in the distance. अब क्या हुआ, वो इतना परेशान हो गया कि उसको कोई दोस्त नहीं है, कोई बातचीत करने के कोई और कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है उस आइलैंड में, ओनली वो ही है वहाँ पे. फिर क्या हुआ, जब उसको उसकी फुलिशनेस पे समझ आई तो उसने क्या किया, वो शोर पे जाके खड़े होकर देखता था कि कोई बोट सेल करके आ रही है तो मैं उसको रोकूं, है ना. फिर क्या होता था, उसको बहुत दूर दूर पे दिखते थे बोट्स, पास में नहीं दिखते थे. फिर क्या हुआ, he tried to signal them, he called as loudly as he could,
but he was neither seen nor heard, and the ships came no nearer. फिर क्या हुआ, उसने वो शोर पे आके कुछ सिग्नल्स करने लगा, और उसके बाद क्या करने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलना बुलाने लगा, पर कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो बोट्स तो काफी दूर थे। वो ये ना उनके नजरों में आ रहा था और ना ही इसकी आवाज उन तक पहुंच रही थी। तो इसलिए क्या है, इस कारण वो शिप्स कभी भी शोर तक नहीं आते थे, दूर से ही पलट जाते थे। If I ever if I ever have the good fortune to escape from this island, he said, I will be kind and obliging to everyone. I will try to make friends instead of enemies. अब वो क्या हुआ, अब उसको उस आइलैंड में 4 years 4 months रहते रहते वो एक दूसरा पर्सन बन गया। उसके अंदर की जो भी बैड क्वालिटीज थी, जो भी उसका नेचर था, उसको वो बदल के वो कैसा एक पूरा बदलाव आ गया उसमें। उस डेजर्टेड प्लेस में ऑल अलोन रहते रहते क्या हुआ, उसमें चेंज आ गया। अब वो क्या कह रहा है, आई विल बी इफ आई एवर हैव द गुड फॉर्चून, अगर मेरी ऐसी कोई अच्छी किस्मत हुई कि मुझे यहाँ से एस्केप, मुझे यहाँ से बचने का रास्ता मिला, देन आई विल बी काइंड एंड ऑब्लाइजिंग टू एवरीवन। और अगर मैं यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया, तो मैं आगे सबके साथ बहुत दयालु रहूंगा और बहुत काइंड रहूंगा और सबके साथ बहुत हेल्पफुल रहूंगा। अपना ये जो पहले का जो वायलेंट नेचर था, बैड टेम्पर था, वो सब वो हटा देगा। जो स्टबर्न नेचर था उस सबको वो चेंज करके वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे यहाँ से बचने का कोई रास्ता मिलता है और मैं कामयाब होता हूँ यहाँ से बच निकलने के लिए, तो मैं अब आगे जाके सबके साथ बहुत ही काइंड पर्सन बनूंगा और सबके साथ बहुत ऑब्लाइजिंग, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन बनूंगा। आई विल ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज। अब मैं सबके साथ दोस्ती करूंगा, किसी से भी दुश्मनी नहीं लूंगा, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगा। For 4 years and 4 months he lived alone on the island. Then to his great joy, a ship came near and anchored in the little harbor. अब देखो 4 years and 4 months निकलते निकलते क्या हुआ, अब एक खुशी का ठिकाना आ गया उसका, उसके अच्छे दिन आ गए। अब क्या हुआ, अचानक से एक शिप जो है वो पास में आती है, शोर पे आती है और एंकर करती है अपने आप को वहां पे हार्बर में, वो रुकती है, वहां हॉल्ट करती है। He made himself known and the captain willingly agreed to carry him back to his own country. अब जब वो जो शिप जो है वो हार्बर में आके रुकती है, ठहरती है कुछ दिनों के लिए, तो क्या होता है, इतने में क्या होता है, ये अलेक्जेंडर सेल्फ्रिक उस कैप्टन से दोस्ती करता है, उससे बातचीत करता है और वो अपने आप को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप उस पार ले जाओ, शोर में ले जाओ, मुझे मुझे वापस अपनी कंट्री ले जाओ। तो क्या होगा, कैप्टन एग्री करता है। ओके, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने वापस आपकी कंट्री पे छोड़ देता हूँ। When he reached Scotland, everybody was eager to hear him tell of his adventures, and soon he became very famous. अब देखो क्या होता है, अब वो स्कॉटलैंड में ही उसका घर था, वो स्कॉटलैंड से ही घर छोड़ के भागा था आइलैंड की तरफ। अब वो क्या हुआ, जब ये जो पहली शिप जब आती है वहाँ पे हार्बर में और वहाँ पे आके रुकती है, तो क्या होता है, वो अपना समय नष्ट नहीं करता, तुरंत जाता है उस कैप्टन से दोस्ती करता है, बातचीत करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे आप वापस मेरे कंट्री यानी कि स्कॉटलैंड में मुझे वापस छोड़ दो। तो वो कैप्टन एग्री करता है, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आपकी कंट्री में छोड़ देता हूँ, स्कॉटलैंड में वापस छोड़ देता हूँ। और वो अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक को अपनी कंट्री स्कॉटलैंड में छोड़ देता है। और जैसे ही वहाँ के लोगों को, वो नेबर्स को पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक आया है, तो क्या हुआ, वो सब इतने खुश होकर दौड़ने लगे उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसकी कहानी इतनी फेमस हो चुकी थी, उसके एडवेंचर्स इतने इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति 4 years and 4 months अकेले एक डेजर्टेड प्लेस में रहना, मैंने ये तो बहुत बड़ी बात होगी, तो इस चीज के लिए वो फेमस हो गया। तो आप वो गांव जहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करता था, उसके वायलेंट नेचर, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग जैसे उनको पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक वापस जो है स्कॉटलैंड आया है, तो
तो दूर दूर से लोग भागे फिरे उसके पास आते हैं उसके एडवेंचर्स को सुनने के लिए, उसको उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था उसके एडवेंचर्स के कारण। In England, there was then a man whose name was Daniel Defoe. He was a journalist and author. He had written many stories which people at that time liked to read. अब देखो उसी टाइम इंग्लैंड में क्या था, एक आदमी रहता था जिसका नाम था डैनियल डेफो। अब ये कौन थे? ये जर्नलिस्ट थे, ये अखबार वगैरह में जो है ये लिखते थे, अपना राइटअप्स देते थे। तो क्या हुआ, he had written many stories which people at that time liked to read. और इस डैनियल डेफो ने इतनी सारी कहानियां पेपरों में छपवाई थी, इतनी सारी उसके चीजें छपती थी पेपर में कि लोग इसको बहुत पसंद करते थे, इसकी स्टोरीज को पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे। When Daniel Defoe heard how Cedric had lived alone on the island of Juan Fernandez, he said to himself, "Here is something worth telling about. The story of Alexandra Cedric is very pleasing." अब जैसे इस डैनियल डिफो को पता चलता है सेल्फ्रिक के बारे में, जो कि एक आइलैंड में, जुआन फर्नांडिस नाम के आइलैंड में अकेले 4 years and 4 months रह के आया है, उसकी स्टोरी के बारे में जब उसको पता चलता है और इस अलेक्जेंडर के बारे में उसको पता चलता है, तो क्या होता है, वो अब सोचता है कि इससे बड़ी चीज मुझे और कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। वो बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि अब मुझे कैसे भी अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक की जो कहानी है वो मुझे लिखनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्लीजिंग सा स्टोरी है और ये लोगों तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है, सबको ये कहानी बताना बहुत जरूरी है। इसलिए वो जर्नलिस्ट बहुत खुश होते हैं और जल्दी से जल्दी वो अपने पेपर में, अपने न्यूज़पेपर में, अपने अखबार में इसको छापने के लिए तैयार होते हैं। So he sat down and wrote a wonderful story which he called The Adventures of Robinson Crusoe. अब देखो ये बुक है एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसे। अब उसने क्या किया, डैनियल डेफो ने वहाँ पे बैठ के ये स्टोरी वापस लिखी, किसकी, अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक की स्टोरी को उसने लिखी। वो कैसे उसने वो आइलैंड में अपने आप को स्पेंड किया, उससे पहले वो कौन था, वो कैसे नेचर का था, फिर उसने घर छोड़ के वो 4 years and 4 months एक डेजर्टेड आइलैंड में रहा, डेजर्टेड आइलैंड में रहने के बाद उसने अपने आप को कैसे चेंज किया, वो सारी चीजें उसने उसकी स्टोरी लिखी अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक की। और साथ में क्या किया, उसको एक नाम दिया, किस नाम से उसने इस स्टोरी को छापा, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसे, इस नाम से इस स्टोरी को उसने छापा। Every boy and girl has heard of Robinson Crusoe. Have you read the story? अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने भी रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी सुनी है, क्योंकि ये इतनी फेमस स्टोरी है कि ये मानते हैं कि ये स्टोरी जो है सब लड़के लड़कियों सब ने पढ़ा होगा, क्योंकि इतनी फेमस बुक है उस समय की, इतनी फेमस स्टोरी है उस समय की। किस नाम से ये स्टोरी लिखी गई है, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसे। ओके, तो ये थी कहानी अलेक्जेंड्रा सेल्फ्रिक की। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द फुल चैप्टर। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास we will be going through the hard words of the lesson, but I hope before winding up this class I hope you all have understood this story। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एंड I want that you children should sit at home and read this lesson completely, and whatever I have explained you, you should know that very nicely. Okay? Till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be happy.